یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے سنبھل میں 18 دسمبر 2021 کو بزم زندہ دلانے سنبھل کے زیر اہتمام بیادگار ظہیر انور ایڈوکیٹ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد مشفق حسین ایڈوکیٹ کی صدارت اور رضوان مسرور کی نظامت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے اشرف انصاری، مہمان ذی وقار رہے شریف الدین پاشا، زینت مسند رہے عدیل انور، افتتاح کیا ممبر شکیل قریشی، مہمان اعزازی رہے ڈاکٹر رشیق انور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے سنبھل کے مشہور سماج سیوی ادب نواز شخص فاروق جمال ایڈوکیٹ۔ استاد محترم کی ہدایتوں کے مطابق میں بہت کم وقت لے کر اور کوئی تبصرہ نہ کر کے اب آپ کے سامنے ایک ایسے آپ کے محبوب و چہیتے شاعر کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جس کے لیے میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، الفاظ تو بڑی بات۔ انگلینڈ کے ایک ناول نگار نے ایک ناول لکھا، اسے انگلینڈ کی بہت ہی خوبصورت لڑکی نے خریدا اور وہ لڑکی اس ناول کو شروع سے آخر تک ایک ہی بار میں پڑھ گئی، اور وہ لڑکی جب اس ناول کے آخری صفحے پر پہنچی اور آخری سطر پر پہنچی اور آخری لفظ پر پہنچی تو اس کا سر اس ناول پر لڑک گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، وہ لڑکی مر چکی تھی، لیکن اس آخری لفظ پر اس لڑکی کا ایک آنسو رکھا تھا۔ اس آنسو کو شاعری بنانے والے اگر ہندوستان میں چند معتبر شعراء ہیں تو ان میں ایک نہایت ہی اہم نام میرے بھائی عزم شاگری کا ہے۔ جب وہ اپنے مخصوص ترنم سے آپ کو اس آنسو کی کہانی سنائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کائنات کے آنسو شبنم بن کر آپ کے دلوں پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی یاد آتی ہے، یہ آستین مگر روز بھیگ جاتی ہے۔ خان صاحب نے کچھ زیادہ تعریف کر دی میری، میں قطعی یہ تو آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ ان کی نظر میں تو انہوں نے تعریف بتایا نہیں کہ ہندوستان میں شاعر سب سے خوبصورت شاعر تھے، خوبصورتی تو بیان کر دی نا، اب تو بیان کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، بچے بڑے اعتماد سے سن رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، شریر بچے بھی اچھے لگتے ہیں تو کبھی کبھی۔ شہر جہاں سے کوئی طوفان گزر جانے دے، شہر جہاں سے کوئی طوفان گزر جانے دے، مجھ کو اس بار ذرا ٹھیک سے مر جانے دے، مجھ کو اس بار ذرا ٹھیک سے مر جانے دے، شہر جہاں سے کوئی طوفان گزر جانے دے، اپنا محفوظ مجھے رکھ میرے کرداروں میں میری جان، سنو، اپنا محفوظ مجھے رکھ میرے کرداروں میں، میری منزل ہے بکھرنا تو بکھر جانے دے، میری منزل ہے بکھرنا تو بکھر جانے دے، اپنا محفوظ مجھے رکھ میرے کرداروں میں، میری منزل ہے بکھرنا تو بکھر جانے دے، کب سے ویران پڑا ہے میرے خوابوں کا دیار، کب سے ویران پڑا ہے میرے خوابوں کا دیار، اے میری وحشت دل اب مجھے گھر جانے دے، اے میری وحشت دل اب مجھے گھر جانے دے، اے میری وحشت دل اب مجھے گھر جانے دے، بے سبب تو نہیں یہ گھر میں اجالے ہوئے ہیں، بے سبب تو نہیں یہ گھر میں اجالے ہوئے ہیں، خواب تیرے میری آنکھوں کو سنبھالے ہوئے، خواب تیرے میری آنکھوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی کرتا نہیں دنیا میں ہمارا اکرام، ہم کسی گھر سے نہیں دل سے نکالے ہوئے ہیں، کوئی کرتا نہیں دنیا میں ہمارا اکرام، ہم کسی گھر سے نہیں دل سے نکالے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر سنیں، کیسے آصف بھلا کیسی یہ وحشت زدہ رات، ہم کسی گھر سے نہیں دل سے نکالے ہوئے ہیں، کیسے آصف بھلا کیسی یہ وحشت زدہ رات، ہم تیرے نام کا تعویذ جو ڈالے ہوئے ہیں، ہم تیرے نام کا تعویذ جو ڈالے ہوئے ہیں، صبح تک کیسے گزاری ہے یہ اب پوچھتی ہے، صبح تک کیسے گزاری ہے یہ اب پوچھتی ہے، رات ٹوٹے ہوئے
पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबक पूछती है, तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। कुछ शेर और सुना दूं? कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई, कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई, मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। बहुत अच्छा। नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई, मैं नजर न उससे मिला सका। दोस्तों, मैं अदबी हवाले से शहर को कैफी संभली और कमर संभली के हवाले से जानता हूँ, तो मुझे जो ये आवाज़ें आ रही हैं तो शायद मुझे लग रहा है आप कहीं बाहर से तो नहीं है मुझे तो, लेकिन हैं यहीं के। इंतहाई अफसोस की बात है कि किसी शेर को इस तरह मजाक उड़ाना। हम मुशायरे पढ़ते हैं, अक्सर दूसरे दिन मुशायरा पढ़ते हैं, कभी दूसरे दिन कभी तीसरे दिन, लेकिन जिस तरह की आवाज़ें हमें अपने ही लोगों से शिकायत होती है। अब तो हम वो मुशायरे भी पढ़ते हैं जिनमें दूसरे लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों से क्यों ये कहना पड़ता है कि आप जरा शऊर से सुनिए। तो हमें बड़े अफसोस की बात है कि हमें आपसे ये कहना पड़ता है और हमें दुख होता है इस बात का। आप नहीं सुनेंगे, मैं दो शेर सुना के बैठ जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझ पे, मैं चला जाऊंगा। और बच्चे नादान है, थोड़ा बच्चे नादान। हाँ नहीं, ये नादानी अगर है तो ये तो कयामत है इस कौम की सबसे ज्यादा बर्बादी की निशानी है। समझा दीजिए अगर इस वक्त इस उम्र पे नादानी है। समझा दीजिए। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई, मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। मैं दिया था अपने दयार का, जो जला हुआ था बिसात भर, मैं दिया था अपने दयार का, जो जला हुआ था बिसात भर, मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, मेरी लो बढ़ा के चली गई। वाह वाह, मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, बहुत अच्छा, मेरी लो बढ़ा के चली गई। बहुत उम्दा। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था किसी शब ने ओस की बूंद पर। वाह, अभी बहुत शुक्रिया दोस्तों और बहुत शुक्रिया बच्चों मेरे। मैं आपके बड़े भाई या बाप, मेरे बच्चे भी बहुत बड़े हैं, आपके जैसे हैं, तो अगर मैंने कोई बात कही है तो ये समझ के माफ कर दीजिएगा कि भाई कोई हमारे बड़े नहीं। तो मैं आप हजरात को शेर सुना रहा हूँ। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था किसी शब ने ओस की बूंद पर। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था किसी शब ने ओस की बूंद पर, वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली गई। सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली। इन दिनों एक गजल कही है मैंने, वो गजल सुनाना चाहता हूँ, आप जरा सुन लें। बहुत शुक्रिया।
बड़ी सर्द है हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शब गम पिघल रही है। क्या कह रहे हैं? सर्द है हवाएं, शब गम पिघल रही है। बड़ी सर्द है हवाएं, शब गम पिघल रही है। वो धुआं सा उठ रहा, कोई शाख जल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। बड़ी सर्द है हवा। क्या कह रहे हैं? दोस्तों, अभी हम एक कयामत से गुजरे हैं और उस कैफियत में देखिए गजल का शेर कैसे बन जाता है। शोरा हजरात भी मेरे तशरीफ फरमाए, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। बहुत उम्दा। मेरा हाथ छू के देखो, बहुत उम्दा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग ऐसे ही चले गए, पता नहीं वो जिंदा चले गए या मुर्दा, पता भी नहीं लगा हम लोगों को। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, क्या कह रहे हैं? मेरी नब्ज चल रही है। वाह। मेरा हाथ छू के देखो, है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। सुने मेरे बच्चों, सुने ये शेर। है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। वाह। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। मेरे दोस्तों को मेरी। दोस्तों, पुराने मकानों में एक हुआ करते थे छोटे छोटे ताक, उसे ताकचा कहते थे। जाहिर है ये तहजीबी जमीन है, सब लोगों को मालूम होगा। मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है और देखा गजल कैसे बनती है। सुने मोहब्बत करने वाले, बड़ा काम आएगा शेर सुने। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। भाई प्लीज माफी चाहता। वो धुआं, हाँ यार शेर मर जाता है एक आदमी के चक्कर में। ठहरे हुए पानी में ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। अभी दिल के ताकचे से तेरी लौ निकल रही है। अरे बहुत बड़ा शेर है। वाह 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 वाह। तेरी लौ निकल रही है। तेरी लौ निकल रही है। वाह वाह वाह। मैं ये कैसे मान जाऊं क्या कह रहे हैं? कि चिराग बुझ गया है। अभी दिल के ताकचे से
तेरी लौ निकल रही है। वाह वाह वाह। दोस्तों ये शेर मैंने जब पढ़ा भी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था कहीं, तो हमारे एक दोस्त हैं इकबाल अशर, वो कहने लगे यार ये शेर आप उन लोगों की नजर करते हैं जिनकी देर से शादी होती है, तो मैं आप भी हैं उसमें, यार कमाल आ गया, मजा आ जाएगा शेर सुना। एक आध तो मिल ही जाता है मजमे में कोई ना कोई आपके जैसा। अभी दिल के ताक़चे से तेरी लौ निकल, अब शेर सुने। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वाह। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। ये बच्चों के लिए 2-4 शेर ऐसे सुना दिए जाएं जो मोहब्बत में डूबे, जो बच्चे जब यहाँ से जाएं तो बड़े सरशार होके जाएं, और दिल तो सबके यहाँ है जाहिर है। तो ये मेरे बड़े पुराने शेर हैं, ये गजल है, आप सुन लें। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया। अगर मेरी इज्जत आबरू भी खतरे में न डलवाए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। इनका शेर दोबारा पढ़ दूं। वो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी। देखिए ये हमारे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, हसन काज़मी साहब हैं और कुंवर जावेद साहब, तो जाहिर है ये हमसे कम से कम 10 साल सीनियर हैं, तो और जहाँ ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो अब ये मिसाल के तहत अब जो मकाम ये जो इनका मकाम है वो एक दिन में नहीं मिला, एक ये 40-50 साल हो गए, 40 साल हो गए ने काम करते हुए, एक एक ईंट करके इमारत तामीर होती है, तब इंसान का वो मकाम बनता है। तो मैंने इसी कैफियत को शेर बनाया, आप सुने शेर। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना। सुने शेर। कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, मरना पड़ता जिंदगी के लिए। दोस्तों एक गजल 5 शेर हैं, मैं अपनी मर्जी से
सुनाना चाहता हूँ। आप अगर खामोशी से भी सुन लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस गजल को आप सुन लें, वो बहुत पुरानी हो, आप कुछ ऐसा कलाम सुन लें जो, हाँ मैं बहुत दिल से सुना रहा हूँ, एक एक लफ्ज आपको सब समझने वाले बड़े मोहतरम लोग बैठे और शोरा हजरात के लिए भी नई गजल होगी। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का, आप खामोशी से भी सुन लेंगे तो मेरे लिए दाद होगी। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, क्या कहते मंजर बना लेता हूँ मैं। दोस्तों महेंद्र भाई हमारे बहुत मोहतरम, इन्होंने हमें मुशायरों में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इतने मोहतरम हैं हमारे। आंख में सैलाब का मंजर बना लेता, जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, क्या कह रहे हैं, टूटने लगते हैं पाँव, जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं। अरे क्या कह रहे हैं, मंजर बना लेता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शोरा हजरात की दाद मिल जाए बड़ी। वाह वाह वाह। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से। क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से, फिर उसी दीवार में एक दर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। और दोस्तों ये शेर सुने, जो लोग शायरी दिल से सुनते हैं यकीनन ये शेर उन तक पहुंच जाएगा। किस कैफियत, देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बनने की हैं, उन्हें बना दिया जाता है, शायर रदीफ है, बना लेता हूं मैं। आंख में सैलाब का मंजर बना लेता हूं मैं, मुस्तकिल रखता हूं एक तस्वीर उसके सामने, तस्वीर उसके सामने, मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, रोशनी के सारे दरवाजों को कर लेता हूँ बंद, रोशनी के सारे दरवाजों को कर लेता हूँ बंद, अपने अंदर एक ऐसा डर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। और ये आखिरी शेर, ये बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मैं ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस आखिरी शेर पर आप अपनी पूरी मोहब्बतों से नवाज दें। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, शेर सुनिएगा, खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, नक्शा बड़ी तरतीब से खींचता हूँ
जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से एक कागज पर हजारों सर बना लेता हूँ मैं सैलाब का मंजर। बहुत शुक्रिया। वाह वो दूसरे दौर में जरूर पढ़ेंगे, जाएंगे नहीं अभी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वक्त बहुत कम है और मोतबर शोरा हैं यहाँ अभी डाइस पर। जब उन्होंने अभी जनाब आजमी शाकरी ने कहा कि ये एक पुरानी गजल में पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे मैं जनाब आजमी शाकरी साहब जब आपने कहा कि ये पुरानी गजल पढ़ना चाहता हूं, तो आप बहुत सीनियर हैं। पुरानी शराब कभी पुरानी नहीं होती, पुरानी किताब कभी पुरानी नहीं होती। शायर जमाली ने कहा था, सूरज कभी पाबंद जमाना नहीं होता, जो शेर हो अच्छा वो पुराना नहीं होता। ये शायरी तो वो फसाने हैं जहां कहा, दिल से जुदा गमों के फसाने नहीं हुए, सदियां गुजर गई हैं पुराने नहीं हुए। तो मैं इंतहाई बहुत ही कम वक्त लेते हुए निजामत में मैं अब एक ऐसे, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।